Hello my dear friends, today we will discuss what is the bioavailability, what's its type and how we can calculate the bioavailability from the different data. So today we will discuss what is bioavailability. In my last video we discussed what are different terms of the pharmacokinetic parameters like AUC, Cmax, Tmax, therapeutic range. तो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, इसकी टाइप क्या होती है और कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? सिंपली इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन और यू कैन से ब्लड. उसमें हमारा जितना भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है ड्रग का आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, दैट इज नोन एज द बायो अवेलेबिलिटी. तो व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? इट इज द रेट एंड extent of absorption of unchanged drug from its dosage form. रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन कितना हुआ किससे? इसके डोसेज फॉर्म. सपोज यू आर गिविंग ए टेबलेट, कैप्सूल, व्हाटएवर, तो टेबलेट से कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, कितना उसका अमाउंट मतलब ड्रग में हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया. कैप्सूल लेते हैं उससे कितना गया, जो भी डोसेज फॉर्म ले रहे हैं उससे कितना हमारे ब्लड में जाता है, कितना ब्लड में प्रेजेंट है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, दैट इज नोन एज द बायो अवेलेबिलिटी. दिस इज द बायो अवेलेबिलिटी. कितने टाइप का होता है बायोअवेलेबिलिटी? जैसे हम यदि बायोअवेलेबिलिटी की बात करें, टू टाइप का हमारा रहता है. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एंड सेकंड इज रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी. वी विल डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एंड व्हाट इज रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी. तो देखिए बायोअवेलेबिलिटी को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बिफोर the calculation of relative and absolute viability we have to discuss what is AUC. AUC क्या रहता है? देखिए AUC simply क्या रहता है? Suppose that it is a graph. In my last video we will discuss different terms of the pharmacokinetic parameters and the area under this curve, this is known as what is? This is the AUC. What is AUC? Area under curve. क्यों मैं आपको इसका बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे को रिलेटिविटी और एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी निकालनी है, तो हमारे को जरूरत पड़ती है किसकी? AUC की. AUC कैलकुलेट करना पड़ेगा. और AUC एरिया अंडर कर्व, इस कर्व के अंडर कितना एरिया हमारा AUC एरिया अंडर कर्व, और इसका यूनिट हमारा क्या रहता है? माइक्रोग्राम R पर ml. दिस इज द यूनिट ऑफ द AUC. नाउ the question is how we can calculate the AUC. There are different three methods to calculate the AUC. The number first is scale counting method. Number second method is cut and weight method. And the third is these are the three different methods to calculate the AUC. The number first is the scale counting method in which we count the squares. How many squares under this curve? ठीक है, curve is here is the concentration और here is the time. इसके बीच में कितने? The scale counting method. Number second cut and weight method. And number third is the most important and widely used method. What is the trapezoidal method, or you can say the trapezoidal rule. There are the three different methods to calculate the AUC. Now I am going on the main topic, how we can calculate the relative and absolute bioavailability. We will discuss one by one. Bioavailability is of two types. It is of two types. The number first is absolute bioavailability. What is absolute? The number first type of the bioavailability is of absolute bioavailability. What is absolute bioavailability? When the bioavailability of an oral dosage forms is determined in comparison to IV administrations. IV administration के साथ कंपेयर किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? Absolute bioavailability. Means it is the bioavailability of an oral
doses formed in systemic circulation is determined in comparison to its IV administration. किसी भी ओरल डोसेज फॉर्म्स की बायोबिलिटी आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिटरमाइन करना और कंपैरिजन करना है किसके साथ, आईवी के साथ। जब हम आईवी के साथ कंपेयर करें, आपने किसी पेशेंट को एक टेबलेट दिया ओरल रूट से, तो टेबलेट देने के बाद आपने उसका बायोबिलिटी चेक किया, उसके बाद क्या किया आपने, फिर उसका आईवी एडमिनिस्ट्रेशन दिया, उसका आपने चेक किया और दोनों को कंपैरिजन किया। जो बायोबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। मतलब कंपैरिजन है किसका, ओरल का किसके साथ, आईवी के साथ। दिस इज नोन एज द absolute viability. How? And it is denoted by the factor F, capital F. किससे हम इसको डिनोट करते हैं, the factor capital F. Now how, what is the formula to calculate the F? F means the absolute viability. How we can calculate? The formula is AUC of oral upon dose of oral upon AUC of IV on dose of IV. It is a very important formula to calculate the absolute viability. AUC oral, AUC means area under करो, और हम पहले बात कर चुके हैं कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं AUC। यदि आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और टाइम है, दोनों आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी का सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया है या डिसोल्यूशन किया, आपने सैंपल लिया है, तो उसमें क्या रहता है, आपको कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ मिलेगा। ग्राफ लाइक दिस, आपको ये ग्राफ देखना होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, AUC, वेदर द स्केयर काउंटिंग मेथड और बाय कट एंड वेट मेथड और बाय ट्रेपेजोइडल रूल। तो AUC ओरल का डोज कितना रहता है, हमारे को पता रहता है डोज, अपोन में AUC IV और डोज ऑफ IV, और आफ्टर द मॉडिफिकेशन if I am rewriting this, how it is AUC of oral into में dose of IV upon AUC of IV into में dose of oral. This is the formula for the calculation of absolute bioavailability, means AUC oral into में dose of IV upon AUC IV into में dose of oral. From this formula you can calculate the absolute viability. Now number second, what is relative viability? Number second is the relative viability. The number second is the relative viability. And what is relative viability? When the viability of an oral dosage from in systemic circulation is determined in comparison to its oral standard that can be a solution or suspension. मतलब oral का किसके साथ comparison कर रहे हैं, किसी भी oral standard के साथ। standard क्या हो, कोई भी solution हो सकता है, suspension हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। simply meaning suppose that you are giving a tablet to a patient orally, और उस orally tablet का आपने पहले viability निकाला और उसको comparison किया किसके साथ, उसके standard के साथ। standard solution हो सकता है, standard suspension हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, relative viability। absolute में हम किसका comparison करते हैं, absolute में हम IV के साथ comparison करते हैं, और इसमें हम किसके साथ करते हैं, relative viability में उसके oral standard के साथ ही करते हैं। standard can be a solution और standard can be a suspension। mean comparison of one oral dosage form is compared with its standard solution। तो देखिए हमारे पास अब आगे एक तो हमारा क्या होगा, टेस्ट, जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट, और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। तो देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स वी आर टेकिंग, व्हाट इज टेस्ट, और सेकंड हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड। सेकंड हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, स्टैंडर्ड सस्पेंशन हो सकता है। एंड वन मोर थिंग,
रिलेटिव बायोबिलिटी हम एब्सोल्यूट बायोबिलिटी हम क्या करते हैं, आईवी के साथ कंपैरिजन करते हैं। आईवी क्यों लेते हैं, क्योंकि आईवी के केस में हमारा कितना रहता है, 100% बायोबिलिटी रहता है, क्योंकि डायरेक्ट हम ड्रग है जो हमारी किस में इंजेक्ट करते हैं, ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। और रिलेटिव बायोबिलिटी में क्या करते हैं, ओरल डोसेज फॉर्म का, दैट मे बी अ टेबलेट, कैप्सूल, व्हाटएवर, उसका कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, ओरल सस्पेंशन सॉल्यूशन के साथ सस्पेंशन, मींस रूट इज सेम, ओरल है तो ओरल है, ऑफ द सेम ड्रग। सेम ड्रग का होता है, डिफरेंट ड्रग्स का कंपैरिजन ही ऐसा नहीं हो सकता आप पैरासिटामोल का एस्पिरिन के साथ करें, आप एमोक्सिसिलिन का सफिक्सिन के साथ करें, नो, आप एमोक्सिसिलिन की टेबलेट का कंपैरिजन करेंगे एमोक्सिसिलिन के स्टैंडर्ड के साथ, दैट इज सॉल्यूशन और सस्पेंशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड करेंगे ऑफ द सेम ड्रग, दोनों का क्या रहता है, सेम ड्रग होती है। और व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय द letter FR, capital F small r, means relative viability. How we can calculate, it is the formula of AUC of test upon dose of test, upon dose of test upon AUC of standard upon dose of standard. This is the formula, AUC of test upon dose of test and upon OUC standard upon dose of standard. What is test and standard, जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, and what is AUC, area under curve, क्या उसके निकालने के मेथड हो सकते हैं। I am again repeating the cut and weight method, the square counting method and the trapezoidal rule. These are the different methods. Unit क्या रहती है, microgram r per ml. Now this formula becomes AUC of test into में dose of standard upon AUC of standard into में dose of test. This is the formula for the calculation of relative viability. AUC test into में dose of standard upon AUC standard into में dose of the test. By using this formula you can easily calculate what is relative viability. There is viability of two type, what is absolute viability and second is the relative viability. कैसे हम उनको निकाल सकते हैं, क्या उनके फॉर्मूले रहते हैं, we discuss in this. Now this study can be done on two levels, दो levels पे हम इनको study कर सकते हैं. This viability studies can be done on different two levels. तो देखिए कौन कौन से लेवल्स हम हो सकते हैं। सपोज आपने AUC, या तो आप एब्सोल्यूट वायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं या रिलेटिव वायबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, AUC। AUC कैसे हम निकाल सकते हैं, देखिए सपोज दैट यू नीड 2 पैरामीटर्स, टाइम एज वेल एज प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए, कितना चेंज हो रहा है। सपोज हियर इज द ग्राफ, ये आपके पास ग्राफ आ गया और फ्रॉम बाय यूजिंग दिस ग्राफ आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, AUC मींस एरिया अंडर कर्व। तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, टू टाइप, दो तरह से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। द वन इज फार्माकोकाइनेटिक स्टडी एंड सेकंड इज फार्माकोडायनेमिक स्टडीज। दो तरह से हम इसकी स्टडीज कर सकते हैं। द नंबर फर्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक स्टडी एंड द सेकंड इज डायनेमिक स्टडी। दो तरीके से कर सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में प्लाज्मा टाइम लेवल एंड सेकंड हम क्या करते हैं, यूरिन एक्सक्रीशन डाटा 2। और इन फार्माकोकाइनेटिक what we are taking acute pharmacological responses and what is the therapeutic response। तो दो तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, देखिए आपको किसी ड्रग का स्टडी करना तो आप क्या लेंगे, या तो किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे। व्हेन वी आर टेकिंग द ब्लड सैंपल, दिस मींस
प्लाज्मा टाइम लेवल स्टडी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यूरिन एक्सक्रीशन डाटा, या फिर यूरिन सैंपल ले अनचेंज्ड कितना हमारा ड्रग एक्सक्रीट हुआ है उसके हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज यूरिन एक्सक्रीशन स्टडीज एंड दीज मेथड्स, दीज फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स आर इनडायरेक्ट मेथड्स, these are indirect methods and these are direct methods, these are direct methods। इसमें हम क्या देखते हैं, डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देखते हैं, लाइक ECG डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देखते हैं फार्माकोडायनेमिक स्टडीज में, उसको हमारा क्या मिलता है, थेरेप्यूटिक रिस्पांस मिलते हैं। तो हमारा क्या प्लाज्मा लेवल स्टडी है और यूरिन एक्सक्रीशन डाटा स्टडी है। जब हम बात करते हैं, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट when we are talking about what is plasma level time studies, प्लाज्मा सैंपल हमने किसी पेशेंट का लिया और हमने ड्रग का कंसंट्रेशन पता किया और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो कितना टाइम है कितना कंसंट्रेशन है, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर हम निकालेंगे। उसमें क्या रहता है, इसमें हमारा रहता है Cmax, Tmax और AUC, और ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, व्हाट इज Cmax, व्हाट इज Tmax, व्हाट इज AUC। तो बाय यूजिंग दिस डाटा यू कैन कैलकुलेट, आपका क्या निकल गया, AUC निकल गया। AUC कैलकुलेट कर सकते हैं, Cmax, Tmax, तो आप क्या निकाल सकते हैं, वायबिलिटी। कौन कौन सी वायबिलिटी, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। उसके लिए क्या फॉर्मूले रहते हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्मूला फॉर इफ यू आर कैलकुलेटिंग F। व्हाट इज F? इट इज द एब्सोल्यूट वायबिलिटी। यदि आपको F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, AUC ऑफ ओरल इनटू में डोज ऑफ IV अपॉन AUC ऑफ IV into में dose of oral. This is the formula for the calculation of F. F, what is F? It is the absolute viability. It is the absolute bioavailability. This is the formula. तो आपको क्या चाहिए, AUC। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, AUC निकाल सकते हैं। AUC मिल गया, डोज आपको पता होता है तो क्या निकाल सकते हैं, हम F निकाल सकते हैं। और you can also calculate the FR. What is FR? It is the relative viability. AUC of the test into में dose of standard upon AUC of what is standard into में dose of test. So by using this formula we can calculate the relative viability, absolute as well relative viability, and this is for प्लाज्मा लेवल डाटा। प्लाज्मा सैंपल आपने लिया, जब हम बात करें यूरिन सैंपल है तो उसमें क्या रहता है, यूरिन सैंपल में हम Cmax, Tmax और AUC की बात नहीं करते, उसमें हम क्या लेते हैं, इन यूरिन एक्सक्रीशन डाटा वी टेकिंग द dxu by dt। व्हाट इज dxu by dt? इट इज द मैक्सिमम यूरिन रेट एक्सक्रीशन, कितना यूरिन रेट है, दिस इज द रेट, मैक्सिमम एक्सक्रीशन रेट, दिस इज मैक्सिमम एक्सक्रीशन रेट dxu by dt। और ये किससे रिजेंबल करता है, इट इज जस्ट लाइक Cmax इन प्लाज्मा लेवल। जैसे प्लाज्मा लेवल स्टडी करते हैं उसमें Cmax होता है, तो हमारा यूरिन में क्या रहता है, dxu by dt। और क्या होता है, Tu max, मतलब T, जैसे हमारा Tmax रहता है, इसमें क्या कितना टाइम में हमारा एक्सक्रीट हुआ मैक्सिमम। ओके, एंड वन मोर टर्म जिसको हम क्या लेके चलते हैं, xu infinity। This is very important term. What is xu infinity? What is xu infinity? It is the cumulative amount of drug excreted. What is cumulative amount drug excreted? What is xu? It is the cumulative amount excreted. It is the cumulative. तो देखिए, don't be confused in that. This is dxu by dt is like Cmax, this is T like Tmax, or this xu infinity is just like AUC in plasma level। तो जब हम यूरिन स्टडी करें, किसी पेशेंट का यूरिन सैंपल ले, उसमें से ड्रग का कंसंट्रेशन पता करें। अब हम क्यों ले रहे हैं, देखिए आपने किसी पेशेंट को टेबलेट दिया, कोई भी डोसेज फॉर्म दिया, तो हमारी ड्रग कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं, या तो ब्लड सैंपल ले, ब्लड में ड्रग मिलेगी, ब्लड में नहीं है तो कहाँ होगी, यूरिन में एक्सक्रीट हो गई, तो यूरिन सैंपल ले। जब यूरिन के पैरामीटर्स हम निकालते हैं, यूरिन एक्सक्रीशन डाटा स्टडी करते हैं, तो हम क्या लेते हैं, dxu by dt, Tu maximum और xu infinity। xu infinity, it is the cumulative amount excreted
और ये सेम एज AUC इन द प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी। तो जब हम बात करें यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी, दिस फॉर्मूला होल्ड्स, ये फॉर्मूले कब यूज कर, तो दिस फॉर्मूला आर सेम, नो चेंज, बट आपने चेंज क्या करना है, सिर्फ AUC की जगह क्या लेना है, XU इन्फिनिटी। आप सिर्फ फॉर्मूला मेमोराइज कर लीजिए, कौन से, फॉर प्लाज्मा लेवल। तो प्लाज्मा लेवल में हम AUC लेते हैं, यूरिन एक्सक्रीशन स्टडी कर ले उसमें क्या हम ले रहे हैं, XU इन्फिनिटी। XU व्हाट इज, U मतलब यूरिन, कितना अमाउंट एक्सक्रीटेड हुआ, क्यूमुलेटिव अमाउंट, व्हाट इज क्यूमुलेटिव अमाउंट। तो सेम हमारा एब्सोल्यूट बायोबिलिटी का फॉर्मूला ये है, और ये किसके लिए है, रिलेटिव। तो आपको सिर्फ यह देखना है, आप यूरिन डाटा हम ले रहे हैं या फिर हम प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज कर रहे हैं, कौन से पे, प्लाज्मा में है तो हम बात करते हैं AUC की, और यूरिन में तो हम बात किसकी करते हैं, XU इन्फिनिटी की। देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। और ग्राफ इसके लिए कैसा रहता है, इफ यू आर टेकिंग अबाउट द यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी, तो इनके लिए हमारा ग्राफ जो रहता है वो हमारा सेम ही ग्राफ रहता है, लगभग लाइक सपोज लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा क्या है, XU इन्फिनिटी। ऐसे हम इधर क्या लेते हैं, dXU by dt वर्सेस टाइम, कितना चेंज हुआ हमारा, कितना ड्रग है, और ये क्या, कितना टाइम है मैक्सिमम, दिस इज कितना क्यूमुलेटिव चेंज हुआ, टाइम कितना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, AUC को आपने स्टडी करना है, AUC तो यूरिन में, और आपने ओके। तो दीज आर डिफरेंट टर्म्स, what is viability, what is relative viability, and what is absolute viability, how we can calculate different formula by using plasma level time studies, by using urinary excretion data. I am again repeating, don't get confused in this formula. F जब आप प्लाज्मा की लेवल बात करें तो सिंपली आपने यहाँ क्या लेना, AUC, XU की जगह आपने क्या लेना, XU इन्फिनिटी की जगह AUC। और जब यूरिन की बात करते हैं, यूरिन डाटा की, तो आपने क्या लेना है, XU इन्फिनिटी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो मेमोराइज दिस फॉर्मूला, AUC और XU इन्फिनिटी ओरल इनटू में डोज IV, XU इन्फिनिटी IV इनटू में डोज ऑफ ओरल फॉर एब्सोल्यूट बायोबिलिटी। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव, देन X इनटू में डोज ऑफ स्टैंडर्ड, XU इन्फिनिटी स्टैंडर्ड इनटू में डोज ऑफ टेस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इज बायोबिलिटी, व्हाट इज टाइप्स, हाउ वी कैन कैलकुलेट AUC, three different methods, scale rule and cut and weight method. Most widely used, we use trapezoidal rule. This is all about the bioavailability. Thank you very much.